सभी अहबाब से गुजारिश है ऊपर खड़ जाए। सामने का चेहरा कंप्लीट करो। जिंदाबाद 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 इंक़िलाब इंक़िलाब इंक़िलाब। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा। तब शुभ नामे चाहे तब शुभ आशीष मारे गाये तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಫತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೌಲಾನಾ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಫೀವುಲ್ಲಾ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಕ್ರಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರಿಗೂ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವೀದ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫರ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾಂಚಿಯಾದ ಎಂಎನ್ ಫಿರ್ದೌಸ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವುಮನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜರೀನಾ ಸಾಹೇಬ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಮ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಾನಿಯಾ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ಡಿಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಂಜದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಸ್ವಾಗತ. ಈಗಾಗಲೇ 78ನೇ ವರ್ಷದ ವಸಂತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು 78 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ದಿನದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ನೀಡುವಂಥ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶನ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರುಗಳು ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಮೇಲುಗಡೆ ಅವರು ದೇಶದ ಅಸೂಯೆ ಕೋಮು ಗರ್ವಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶನ ಅವರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶ, ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಿಯರ ದೇಶ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಆಳ್ದಂಥ ದೇಶ, ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ದೇಶ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಫತ್ ಖಾನ್ ಇವರನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, आज एक बहुत ही मुबारक दिन है। आप सबको इस मुबारक दिन की बिलखुसूस मुबारकबादियाँ, खुशामदीद, मरहबा। आज हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के शिकंजे से, उनकी जुल्म सितम की हुकूमत से आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के लिए बेशुमार जानो माल के कुर्बानियाँ देकर बहुत सी मेहनतें मुशक्क़तों के बाद हमें इस आज़ादी मिली है। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, ये एक नायाब हमें तोहफा है, एक बहुत ही अनमोल चीज है आजादी। इसे बहुत ही संभाल कर रखना है। लेकिन अफसोस, आजादी मिलकर भी आज हम आजाद देश के गुलाम बनकर जी रहे हैं। भाइयों, दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे वो एक कारोबार हो या एक तालीमी इदारा हो या एक कोई तोहफा हो या इख्तिदार हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, इसे मिलने के बाद, मैं दोहरा रहा हूं, मिलने के बाद जो है बखूब निभाना है। कोई भी जिम्मेदारी आपको मिलने के बाद अगर आप उसे ठीक तरीके से नहीं निभाएंगे तो जो भी जिम्मेदारी में आप हैं, चाहे वो तालीमी इदारा या कारोबार या कोई तोहफे या कोई भी जिम्मेदारी हो, वो पूरा तबाह और बर्बाद होगा, निस्तो नाबूद होगा। ऐसे ही हाल हमारे इस प्यारे वतन, इस मुल्क का हुआ है। आजादी के बाद जिन लोगों के हाथ में इख्तियार आया, जिम्मेदारी आई, उन्होंने इसे निभाया नहीं है, इसे संभाला नहीं है। जो ताकत, जो इख्तियार, जो पावर हिंदुस्तान के शहरियों के लिए, उनके मुस्तकबिल की भलाई के लिए, उनके फलाह और महदूदी के लिए, उनके अच्छे हालात के लिए, उनके सुधारने के लिए, गरीबी से, भूख से आजादी दिलाने के लिए ये इख्तियार, जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई थी, वो जिम्मेदारी से मुकर गए हैं। इसलिए आज हम इस हालात में हैं। 70 पर 8 साल हो गए, आज भी हमारे देश में, हमारे मुल्क में छोड़िए, हमारे आजू बाजू के गलियों में झांक कर देखिए, भूख से लोग बिलबिला रहे हैं। 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब नहीं हो रही है। और अगर कोई बीमार है तो इलाज के लिए उन्हें पैसा नहीं है। यहां इस मुल्क में जनार्दन रेड्डी 500 करोड़ की अपनी बेटी की शादी करता है और अंबानी 12,000 करोड़ की शादी करता है अपनी बेटी के लिए, बेटे की। लेकिन 12 रुपए की गोली या 12 रुपए का इंजेक्शन नहीं रहने के वजह से आज सिसक कर बिलक कर लोग जान दे रहे हैं। तो ऐसे हालात हैं। जो इख्तियार में है वो अपने जो कैपिटलिस्टिक फ्रेंड्स है, जैसे अदानी, अंबानी, वैसों के खजाने भर रहे हैं। वो बेशुमार मुल्क की दौलत को लूट कर ऐसे लुटा रहे हैं कि कोई किसी को उसके जवाब देने की जरूरत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है।
तो मुल्क को संभालना है भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। जो आजादी मिली है, जो नायाब तोहफा हमें मिला है, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हमें संभालना है। जैसे हम हमारे घर में हमारे कोई जेवरात, कोई भी माल मत्ता ऐसे हिफाजत से संभालते हैं, ऐसे ही हमारी आजादी को संभालना है। इस जो इख्तिदार है, जो वतन हमें मिला है, इसकी फलाह की महबूबी के लिए हमें इसके बारे में हमें सोचना है, इसकी तरक्की के बारे में सोचना है, बेरोजगार नौजवानों के बारे में सोचना है, भूखे और बीमार हमारे भाई बहन बुजुर्ग जो है उनके बारे में सोचना है, मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना है, मुल्क की हिफाजत के बारे में सोचना है। आज चाइना मुल्क के सैकड़ों हजार किलोमीटर अंदर आ चुका है, स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ चुका है, डैम्स बन रहा है, अपने गांवों को बसा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कहां गया है 56 इंच का सीना? अगर दूसरा मुल्क में कोई भी छोटी हादसा पेश आता है तो 56 इंच का सीना दिखाकर वहां पर हुराते हैं, दहाड़ते हैं। अगर दम है तो चाइना के सामने 56 इंच का सीना दिखाकर दहाड़े, रोके चाइना वालों को अंदर आने से। तो ये ढोंगी, फरेब, मक्कार लोग इख्तिदार पर बैठे हैं भाई बुजुर्गों दोस्तों। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, हम और आपकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की आजादी फिर से लाने की जद्दोजहद में, इस जंग में हमें हम शामिल हो चुके हैं। जब तक हम जद्दोजहद करेंगे तब तक इस मुल्क में सही हालात नहीं आते, और जो जिम्मेदारियां हमें दी गई है उसे बखूब निभाकर जो है इस मुल्क के हालात को सुधारेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर मैं फिर एक बार आजादी की बिलखुसूस मुबारकबादियां आपको देते हुए और इस मुल्क के हालात को सुधारने की आवाज देते हुए, और हमारे जो आने वाले 3 साल के लिए जो हमारे जिम्मेदार ब्लॉक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और वार्ड ब्रांच के लीडर जिम्मेदार जो भी यहाँ पर इलेक्ट में हैं, उन्हें भी तहे दिल से मुबारकबादी देते हुए, मरहबा कहते हुए, और आगे इस मुल्क को संभालने की जिम्मेदारी को बखूब निभाने का वास्ता देते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय एसडीपीआई। ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೋಡರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುನ್ನಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ TM ಜಾವೇದ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಹಾಗೂ ಖಜಾಂಚಿಯಾದ MN ಫಿರ್ದೌಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಇದಾದ ನಂತರ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಾನಿಯಾರವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सभी को यौम आज़ादी के दिन की मुबारकबाद देती हूँ। आज हम लोग 78वें साल की आज़ादी के दिन का जश्न मना रहे हैं। आज वो दिन है जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी। उनकी कुर्बानियों को हमें याद करना चाहिए। जैसे कि जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, शहर मैसूर, यहाँ का एक हिस्सा श्रीरंगपट्टन, वहाँ की हर एक जगह, हर एक चीज हमें ये याद दिलाती है कि हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुल्क को आजादी दिलाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी थी। बल्कि इसी तरह बहुत सारे मुसलमान थे जो हमारे मुल्क को आजादी दिलाने के लिए अपनी पूरी कुर्बानियां दी थी। जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना शौकत अली, सैयद अहमद खान,
डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसे बहुत सारे मर्द अहबाब थे जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं। बल्कि इसी तरह बहुत सारी औरतें भी थी जो हमारे मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। बेगम हजरत महल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। बी अम्मा तहरीक खिलाफत में हिस्सा लिया था। बेगम खुदसिया अजीज रसूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और भारत जोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। ऐसे बहुत सारे औरतें थी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, मैडम कामा, चंद्रमुखी बसु, ऐसे बहुत सारे औरतें हमारे मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। इन लोगों की कुर्बानी को हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि आज हमारे मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत है, यह जालिमरान हुकूमत, इनकी एक एक कुर्बानी को इतिहास के पन्नों से नामो निशान मिटाने की कोशिश में है। हमें इन लोगों की कुर्बानी को हमारे आने वाली नस्लों को बताना है कि किस तरीके से कुर्बानियां देकर हमारे देश को आजाद किया था। जब हमारे देश में आजादी मिलने से पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके फॉलोअर्स आज भी हमारे मुल्क में हमारे ऊपर पाबंदियां लगाए बैठे हैं। यह हमें मालूम होना चाहिए। आज हम लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। कहीं एक तरफ हम लोग गम का नजारा भी देख रहे हैं। आज कहीं पर भी औरतें, बच्चियां सेफ नहीं हैं। उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे बच्चियों के सरों से हिजाब को निकाला जा रहा है। हमारे नौजवानों को सड़कों पर जानवरों की तरह मारा पीटा जा रहा है। मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है, बेगुनाहों को जेलों में डाला जा रहा है। यह हमें सोचना चाहिए कि आजादी मिलने के बाद भी आज हम लोग ये सब सहन कर रहे हैं। इस सब को रोकने के लिए अब हमें कोई हमारी हिफाजत के लिए आने वाला नहीं है। हमें खुद उठ खड़ा होना होगा। इनकी हमारी पूर्वजों की कुर्बानियों को याद करते हुए हमें कमर बांध कर उठ खड़ा होना होगा इस जुल्म और सितम को रोकने के लिए। वुमेन इंडिया मूवमेंट हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें नाइंसाफी मिल रही है, वहां पर उनके हक के लिए वुमेन इंडिया मूवमेंट आवाज उठाते आ रही है। आप लोग देख सकते हैं, चंद दिन पहले जो वायनाड के अंदर सैलाब आने की वजह से वहां पर हमारे एसडीपीआई के कैडर्स बिना अपने जानों की अपना सब कुछ कौम के लिए कुर्बान करते हुए वहां पर एसडीपीआई के कैडर्स ने काम करते हुए नजर आए। उसी तरह वहां पर वुमेन इंडिया मूवमेंट के लेडीज भी उतरकर काम करते आ रहे हैं।
हमारा मकसद सिर्फ यही है कि सभी के बराबर हमें भी हक मिलना चाहिए। औरतों को जहां जहां पर जलील किए जा रहे हैं उसे रोकना चाहिए, औरतों के जुल्म सितम को रोकना चाहिए। तो मैं आखिर में मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। हम सब एक होकर इकट्ठा होकर आवाज उठाना है, तब जाके हमें सही तरीके से आजादी मिलेगी, तब जाके हम लोग अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं। कब तक हम लोग ऐसी गुलामी की जिंदगी जिएंगे? कब तक हम लोग ऐसे सियासतदानों के पीछे भागते रहेंगे? अब हमें एक होना है, एक होकर हक के लिए आवाज उठाना है इंशाअल्लाह। तो मैं आखिर में एक शायरी के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वैसा शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गए, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गए। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया औज़न के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया औज़न के हाथों से। ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया ऐसा समंदर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम। ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैसूर सिटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जानिब से जो हमारे 78 इंडिपेंडेंस डे का जिसने आज़ादी का इस प्रोग्राम में आज का इस प्रोग्राम का सदर रफत खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट एस स्वामी साहब, जनरल सेक्रेटरीज शफीला भाई अकरम मौलाना और हमारे लोडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुन्ना भाई, विम का स्टेट कमेटी मेंबर सानिया और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जबीन मैम और ट्रेजरर फिरदौस भाई, सेक्रेटरी जावेद भाई, फरदीन भाई और तमाम विम के जिम्मेदार, पार्टी के असेंबली प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ऑफिस बेरर्स और मेरे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ साथियों, सबसे पहले आप तमाम लोगों को यौम आज़ादी का मुबारकबाद देता। जैसा कि इधर आपके सामने बताया गया, बड़े ही जद्दोजहद के साथ, कुर्बानियों के साथ आज हम आज़ाद मुल्क में जी लेकर शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से लेकर महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस तक करीब करीब 200 साल बहुत बड़ा एक जद्दोजहद, शहादत, कुर्बानी होने के बाद इस आज़ादी मिला।
तो इसलिए हम लोग आजादी के दिन जश्न आजादी इसलिए बना रहे हैं, जो कुर्बानी जो लोग दिए हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, उनका याद करें और आने वाले हमारे नस्ल को वो मोटिवेशन दे। ये जो मुल्क है, आजाद मुल्क है, इसका आजादी को, इसका फ्रीडम को, इसका सेकुलरिज्म को, इसका डेमोक्रेसी को बचाने का काम करे। अफसोस इस बात की है, आजादी के 17 को 8 साल का बाद भी इस देश में लाखों लोगों को आजादी नहीं है। जो हमारे आजादी होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ऐसी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जो है, सबको बराबरी मिलना चाहिए। स्पेशली इस देश का हर बाशिंदे को अपना खुद का एक घर और उसके साथ साथ फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी हुकूमत को है। मगर अफसोस इस बात की है, आज जो भी हमारे हुक्मरान जो फ्री हेल्थ देना था, वो लोग प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट लॉबीज को सौंपा गया। जो फ्री एजुकेशन देना था वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। अभी तक 78 इयर्स के बाद भी इस देश का हर बाशिंदे को एक छत या एक घर नहीं मिला है। बड़े बड़े वादा करते हैं, आप देखे होंगे, बड़े बड़े वादा हर बार हर बजट के बाद किया जाता है, मगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। तो हमारा जिम्मेदारी क्या है? हमारा जिम्मेदारी एक तो जो भी सहूलतें देना है वो दे लेकर नहीं दे हुकूमत, दूसरा इत्मीनान के साथ, एक तवफ़ुज़ के साथ जिंदगी करने का भी मौका नहीं है। हर हमेशा हमारा ऊपर जुल्म, सितम, नाइंसाफी हो लेकर ही है। तो हमारा जिम्मेदारी क्या है? इस देश को हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने जो आजादी दिलाया है, उस आजादी को बचाना और इस देश का डेमोक्रेसी को, इस देश का सेकुलरिज्म को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ऐसा ही हमारे हुकूमतदारों को उनको छोड़ दिए, उन्हें कैसा होना वैसा हुकूमत कर लेकर जाना, हम उसको वो मंजर देखते बैठना, ये सही नहीं है, हमारा जिम्मेदारी है। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस देश कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक चलना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक चलने के लिए हम लोग इस लोगों को कंपल करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और अफसोस इस बात के, जो भी हुकूमतान अलग अलग स्टेटों में या सेंट्रल में है, अपने मफाद के लिए काम कर रही, अवाम की फिक्र नहीं है, अवाम की डेवलपमेंट नहीं है। आज तक 78 इयर्स होने के बाद भी एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पानी, पीने के पानी देने में भी हम लोग फेल्यूर हो गए, फ्री हेल्थ देने में फेल्यूर हो गए, फ्री एजुकेशन देने में फेल्यूर हो गए, जॉब देने में फेल्यूर हो गए, हर बासिंदे को घर देने में फेल्यूर हो गए। तो 78 इयर्स में क्या किया क्या है? तो ये वजह क्या है? जो भी हमारे रूलर्स आकर है अभी, वो रॉन्ग हाथों में है। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है इस देश को, इस देश का डेमोक्रेसी को, इस देश का संविधान को, इस देश का सेकुलरिज्म को बचाने का जिम्मेदारी हमारा ऊपर है। इस देश को भूख से और खौफ से आजाद दिलाने का जिम्मेदारी हमारा ऊपर। तो इसलिए आज हर एक इंडियन ये अहद करना है, इस देश को किसी हालत से भी हम लोग बचा लेंगे, इस देश का डेमोक्रेसी को, इस देश का सेकुलरिज्म को, इस देश का संविधान को हम लोग बचाकर
एक बेहतरीन इंडिया बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश में हर एक इंडियन जिम्मेदारी के साथ काम निभाना है। अगर हमें भी जिम्मेदारी से हटेंगे तो कोई इस मुल्क को बचाने वाला नहीं है। हाल ही में हम देखे हैं ये हुकूमत कैसा जुल्म कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है। इंडिया में वक्फ का प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक एक्ट, ऑलरेडी एक एक्ट था, एक बोर्ड है। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया का अंदर आर्मी और रेलवे छोड़े तो तीसरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वक्फ है, जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है, आमदनी है। आर्मी और रेलवे छोड़े तो तीसरी बड़ा इनकम रहने वाला है, प्रॉपर्टी रहने वाला एक इदारा है वक्फ। आपको मालूम होना चाहिए वक्फ आज क्या कुछ मीडिया में अलग अलग गलत फहमियां बता लेकर है वक्फ के बारे में। वक्फ जो है, वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ जो है किसी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ जो है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो उसका ओनर है उन्होंने अल्लाह के नाम से वक्फ किया है। इसका मतलब उसको वो जो प्रॉपर्टी जो दिया है उसमें से मुसलमानों का रिलीजियस हो, इकोनॉमिकल हो, ये तमाम से डेवलपमेंट करने के लिए वक्फ किया गया। मगर आज गलत गलत अंदाज से मीडिया बहस कर रहा है वक्फ वो प्रॉपर्टी, वक्फ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वक्फ गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है। और अफसोस इस बात की है इंडिया का अंदर तीसरी बड़ी जो प्रॉपर्टी माल रहने के बावजूद भी हमारा हालात क्या है। अल्लाह ताला बड़ा नियमत दिया, बहुत बड़ा नियमत है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज माल हमारे पास रह को भी आज हम लोग भिखारी हैं। वजह क्या है? जो लोगों को हम लोग वक्फ का प्रॉपर्टी संभालने का जिम्मेदारी दी है वही हमारा पीठ का पीछे चाकू डाल रहे हैं। मैसूर का हालात देखो, कितना प्रॉपर्टी से वक्फ का प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी थी भी ढंग से लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर लेकर है क्या? हालांकि वक्फ का प्रॉपर्टी का है, उसका जो आमदनी में 30% अवाम को मिलना है। मगर क्या कर रहे हैं वक्फ का जिम्मेदार लोग? वक्फ का जिम्मेदार लोग उनका लोगों को जो कौन कौन है उनके छेले चपाटे को लोगों को वक्फ में इदारे में बिठाकर काम कर लेकर बर्बाद कर रहे हैं लोग। खाली कभी देखा तो कॉम्प्लेक्स बनाओ, हाँ मेजेस्टिक सामने है ना, इधर ये कॉम्प्लेक्स, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाकर उनके जो भी लोग हैं उनको दो। ये होले करे क्यों है? हमारे खामोशी है, हमारे खामोशी के लिए ये हो रहा है। एक कॉलेज नहीं बन रहे हैं लोग, एक इंस्टीट्यूट नहीं बना, एक पॉलिटेक्निक नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी लाने के बावजूद भी कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानों को देकर उसमें से कुछ फायदा उठाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारे आंखों का सामने 3 एकड़ प्रॉपर्टी आज प्राइवेट लोग कब्जा करके बैठा, हमारा आंखों का सामने हो रहा है। हमारा आंखों का सामने वक्फ का 3 एकड़ प्रॉपर्टी लूट कर जो बैठे हैं, हम खामोश हैं। तो ये हालात है इस देश का। इस जो भी इसमें हम लोग हर नाइंसाफी के साथ, नाहक के साथ खामोश रहेंगे, ये होने वाले नहीं है। आइंदा हम अहद कर जाना है, वक्फ प्रॉपर्टी का एक एक रुपया भी हम लोग बचाएंगे। ये चोरों से, ये जो गलत कर लेकर है, 1 रुपए का फायदा अवाम को नहीं पहुंचा करे, इनको सब हटाने का काम करना है हम लोग। इसको सब हटाकर इसको कौम मिल्लत को फायदा करने का काम हम लोग करना है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम आज इस स्टेज के जानिब से वक्फ का ऑफिसर से वक्फ का जिम्मेदार लोग हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, आप अगर चलाना है तो वक्फ का एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, बैला का मुताबिक चलना है। एक एक गलती को हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक एक गलती को आपको जेल को भेजने वाले हैं हम लोग, हम छोड़ने वाले नहीं हैं।
एक एक आप गलती को आप जेल में सजा काटना है, ये काम हम इंशाअल्लाह हम आहद करके करने वाले हैं। उससे पहले आप सही हो जाओ। ये तुम्हारे बाप का घर का प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका बाप का घर का प्रॉपर्टी नहीं है, अल्लाह का प्रॉपर्टी है, ये अवाम की प्रॉपर्टी है। ये अवाम की प्रॉपर्टी में जो राज कर रहे हैं वो लोग कान खोल कर सुन लो। आप अपने आप को सही करेंगे, सही है, नहीं तो आइंदा दिनों में हर एक आदमी जेल में पिटाने का काम हम लोग करेंगे। तो भाइयों बुजुर्गों, ज्यादा वक्त नहीं देते, ऐसी छोटी बड़ी हर चीज, हर नाइंसाफी, हर नक के खिलाफ आवाज उठाने का काम हम लोग करना है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये सारे तमाम चीजें समझकर आइंदा एक मजबूत इंडिया, एक डेवलप्ड इंडिया, एक विजनरी इंडिया बनाने में हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। इतना ही बात कहते हुए मेरा बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हैदरली ब्लॉक के नए सदर जनाब मोहम्मद फैसल साहब और उनके तमाम वर्किंग कमेटी को मैं दावत देता हूं वो स्टेज पर आए। हैदरली ब्लॉक के वर्किंग कमेटी के मेंबरों से गुजारिश करता हूं वो तमाम ऊपर आए। अब्दुल मजीद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो प्रेसिडेंट मोहम्मद फैसल साहब को और टीम को मोमेंटम से नवाजें। हैदरली ब्लॉक के तमाम साथियों को मुबारकबाद देते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए इसके बाद मैं सुल्तान टीपू ब्लॉक के नए सदर मतीन बेग साहब और उनकी तमाम टीम को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए। ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಂತರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಬ್ಲಾಕ್ನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮತೀನ್ ಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಮಸ್ತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। सुल्तान टीपू ब्लॉक के तमाम साथियों को मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करते हुए इसके बाद मैं दावत देता हूं कि अम्बेडकर ब्लॉक के प्रेसिडेंट साहब मोहम्मद जहीर और उनकी तमाम टीम स्टेज पर आए। अम्बेडकर ब्लॉक के सेक्रेटरी अजीम साहब, अम्बेडकर ब्लॉक के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए सीआर असेंबली कमेटी इनके तमाम साथियों को मैं स्टेज पर दावत देता हूं कि वो आए और मोमेंटो को रिसीव करें। सीआर असेंबली कमेटी जनाब अब्दुल मजीद साहब से मोमेंटो को रिसीव करते हुए मैं इसके बाद हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इंटरनल इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हुए बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाए एमएन फिरदौस साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए। अब्दुल मजीद साहब से गुजारिश करता हूं कि इनकी काम को शाबाशी देते हुए मोमेंटम को पेश किया।
ज्यादा